Good morning, everybody. Welcome back to Science Online class. I'm your science teacher, Mr. C.P. Verret, and together we have to see the solutions of the chapter number 4, that is metals and non-metals. We have finished the chapter well, and I think you all have watched my all the videos related to the different metals, non-metals, their physical properties and their chemical properties also, and how they react with the oxygen, how they react with the water, and even how they react with the acid. Even we have seen how the non-metals react with the air. Okay, what is the nature of their oxides, and these all the things already we have discussed so far in all the videos. And right now this is the time to solve the exercises, and where we have finished all the objectives exercises. Okay, in your book two kinds of the exercises are given. One is the NCERT and second one is the extra exercises, and we have solved both kinds of the objectives questions. जितने भी objectives थे already वो finish हो चुके हैं, if you have remembered in my last video. And right now this is the time from where we have to start the question answers. Okay, so first I am moving towards the पहले मैं जो exercise कर रहा हूँ बेटा, that is the another exercise, extra exercises that we actually talk about, or that is given in the page number 80. You can see, even I am also showing you page number 80. You can see some of the questions are given, very short answer type questions. So what we first we are moving in that particular side. Look here, very short answer type questions. पहले हम लोग ये करते हैं, and after that we will solve some extra, means we have to solve all the exercises. It is not like that I am leaving any particular question for you that you have to do here. All the things I am solving, even I am explaining you also, so no need to worry at all. Why? Because you are actually in the board class. Look here, very short answers type question जो भी होगा very easier question. Why I am saying so? Because अगर आपने वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो आप सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ भी चुके हैं. आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, that I can guess. Okay, first question is that in front of you. Look here, question number first देखो, very short का, and same question is given at your book also, that you can check. Give an example of the metal. बोला क्या गया है? Give an example of the metal which A है is liquid at room temperature. हम लोगों को बहुत सारे examples बताने हैं metal के, and here in the series the first question A is says that is liquid at the room temperature. Meaning क्या हो गया? एक ऐसे metal का example अपने को बताना है जो कि liquid form में होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये बहुत हिट क्वेश्चन है बेटा. ये हमेशा एमसीक्यूज के रूप में पूछा गया है. ठीक है, आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी. ठीक है, MERCURY. सो दैट इज द नेम ऑफ द मेटल. एक्चुअली दैट इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दो चीजें हैं. ठीक है, अगर मेटल के बारे में आस्क किया जाए सो यू हैव टू आंसर मर्क्यूरी. मर्क्यूरी मेटल जो होगा वो आपका आंसर बनेगा. और अगर नॉन मेटल के बारे में पूछा जाए, समटाइम्स द क्वेश्चन आर ऑल्सो आस्क्ड इन द अपोजिट सेंस. ठीक है, कई बार क्वेश्चन उल्टा करके पूछ दिया जाता है कि नेम द नॉन मेटल विच इज फाउंड एट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. तो मीनिंग क्या हो गया? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में प्रेजेंट हमको नॉन मेटल का एग्जांपल देना है. सो वहां पे आंसर क्या बनेगा बेटा? ब्रोमीन. क्या आंसर बन जाएगा? ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक सिंबल होता है कैपिटल B स्मॉल r. कैपिटल B स्मॉल r, या आप हायर क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे. सो ब्रोमीन आपको वर्ड्स में लिखना है. ब्रोमीन आपको सिंबल नहीं लिखना होगा. तो ब्रोमीन नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पे, और अगर मेटल का पूछा जाए तो ये तो आपको याद ही होगा, मर्क्यूरी. ठीक है. B कैन बी कट विथ अ नाइफ. एक ऐसे मेटल का एग्जांपल बताओ. जनरली मेटल्स क्या होते हैं बेटा? हार्ड नेचर के होते हैं. दे आर वेरी हार्ड इन नेचर, बाय नेचर. बट इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ द नाइफ, एक ऐसा मेटल का एग्जांपल जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं. तो देयर आर सो मेनी मेटल्स उसमें, लेकिन आंसर आपको क्या बनाना है? सोडियम. सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल.
आंसर होगा सोडियम। ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। और ऐसे ही छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सी देखेंगे, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बोले चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोले, आपको दो एग्जांपल हमेशा याद रखना है, ठीक है। दो मेटल जो हमेशा बेस्ट कंडक्टर माने गए हैं हीट के टर्म्स में, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में, उनका एग्जांपल है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर, यहाँ पे आपको एक ही एग्जांपल लिखना है। सो आइदर यू आंसर गोल्ड, आइदर यू कैन आंसर सिल्वर, बोथ आर करेक्ट आंसर। डी इज कंपेरेटिवली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेरेटिवली हियर बेटा? कंपेरेटिवली मतलब विद द कंपेरिजन ऑफ समथिंग, किसी के कंपेयर में, अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात है कि हमको एक ऐसे मेटल का एग्जांपल बताना है। जनरली मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बात हम सभी को मालूम है। जनरली द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर माने गए हैं। कंडक्टर मतलब सुचालक, ठीक है। बट एग्जाम्पल देना है अपोजिट सेंस में, कंपेरेटिवली अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल हो लेकिन वो पुअर कंडक्टर हो हीट का, तो आंसर आप हमेशा याद रखना बिस्मथ, ठीक है। बिस्मथ इज अ नेम ऑफ द मेटल, इट इज द मेटल स्टील, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। हाँ, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज जनरली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। सोडियम इज कैप्ट, आपको आई थिंक नजर नहीं आ रहा है, सोडियम इज कैप्ट इमर्स्ड। इमर्स्ड का मतलब होता है बेटा डुबाया जाना, ठीक है। सोडियम इज कैप्ट, सोडियम को रखा जाता है, इमर्स्ड मतलब डुबा करके, इन द केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में, वो घासलेट जो होता है ना केरोसिन ऑयल, अच्छा केरोसिन ऑयल में इसको डुबा करके रखा जाता है। क्यों? मोस्ट हिट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा हिट क्वेश्चन है, मालूम भी होना चाहिए आपको। आई थिंक यू आर नोइंग इट। फिर से देखते हैं, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। हमने ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ लिया, कई बार पढ़ लिया कि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। तो ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे? सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव, और यू कैन से हाईली रिएक्टिव। सोडियम मेटल बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है। इट रिएक्ट्स विगरसली विद द ऑक्सीजन, it reacts vigorously with the oxygen ओके। देखो बेटा, मुझे आई थिंक लास्ट वाले वीडियो में ये सारी चीजें अपन कर चुके हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन तक खत्म हो चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगेट दिस। मुझे मालूम नहीं चला कि ये कर चुका हूं, कोई बात नहीं, आपको फिर से रिपीट हो गया होगा, लेकिन आई थिंक हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोग कहाँ पे आए हैं बेटा? मुझे ये बात याद आ गई कि ये एक्स वाला क्वेश्चन मैंने कराया था ना। एक एलिमेंट एक्स होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है, जिसका फॉर्मूला H2O होता है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। तो एक्स यहाँ पे मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा? तो बेटा एक्स यहाँ पे मेटल होगा, क्योंकि हमेशा जो मेटल्स होते हैं वही बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और बेसिक ऑक्साइड की ही प्रॉपर्टी होती है कि वो जनरली दे कन्वर्ट द रेड लिटमस इनटू द ब्लू वन, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। आई थिंक यहाँ तक मैं करवा चुका था, तो 1 2 3 4 5 फिनिश हो चुका है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन, और मैं ये फिर से करा रहा था आपको, कोई बात नहीं। तो हम लोग शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर से। आपको रिपीट हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से देखना है, यहां से देखते हैं। शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है बेटा। डिफरेंशिएट मेटल फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जनरली बच्चे कौन सा क्वेश्चन याद करके जाते हैं? डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो कई बार ये भी होता है कि हम लोग क्वेश्चन, हमारे पास इतना समय ही नहीं होता है कि हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 2 बार बस हमने देखा मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंशिएट करना है, और फटाफट हमने लिखना ही स्टार्ट कर दिया। लेकिन आगे ये पढ़ना जरूरी है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में करना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में करना हो तो वो तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है,
क्योंकि मेटल्स हार्ड नेचर के होते हैं और नॉन मेटल सॉफ्ट नेचर के होते हैं। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के 2-3 एग्जाम्पल दे दिए अपन ने, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। नॉन मेटल्स के दे दिए, कार्बन होता है, सल्फर होता है, ठीक है, कार्बन, सल्फर और क्या क्या होता है, एक तो हो गया कार्बन, एक तो हो गया सल्फर, एक तो हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद मेटल्स के बारे में अपन बता दिया कि मेटल्स आर द लस्चरस इन नेचर, नॉन मेटल्स आर द नॉन लस्चरस इन नेचर। मेटल्स के बारे में बता दिया, मेटल्स आर द मेलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर। मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल नेचर के होते हैं। मेलिएबल मीन्स they can be converted into the thin sheet form and ductile means they can be also converted in form of the thin wires। इनको thin wires के रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और शीट के रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन मेटल्स के लिए यही चीज अपोजिट है, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल इन नेचर, ठीक है। मेटल्स के बारे में अपन बात करते हैं तो मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। मेटल सोनरस नेचर के होते हैं मीन्स व्हेन दे आर हिट बाय द हार्ड ऑब्जेक्ट, जब इनको हार्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ ठोकर मारी जाती है या हैमर्ड किया जाता है तो दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस द साउंड। इनके पास प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है कि ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और इसीलिए जितने भी रिंगिंग बेल्स होते हैं आपने देखा होगा जनरली दे हैव बीन मेड बाय द मेटल। नॉन मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन सोनरस इन नेचर। तो इस तरीके से अगर मैं बोलते जाऊं तो 10 मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में भी करवाया है और आपने देखा होगा और आपको मालूम होगा कि आपको ऐसे 10 मिल जाएंगे बेटा। कितने मिल जाएंगे? 10, है ना। अब लेकिन क्वेश्चन है केमिकल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन हार्ड होता है और इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो देखो आंसर क्या है बेटा, आंसर सीधे 2 कॉलम्स बना लेना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहला मैं बोल रहा हूं मेटल्स के बारे में, तो हमको 3 रिएक्शन के बारे में ही बताना होता है। किसके बारे में बताना होता है? ओनली 3 रिएक्शंस आर देयर। एक तो होता है कि मेटल्स एयर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ। दूसरा हम ये बताते हैं कि मेटल्स जो होता है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। और तीसरा हम लोग ये बताते हैं कि मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होता है। तो जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो 3 पॉइंट ही बनेंगे। कितने पॉइंट बनेंगे बेटा? 3, ठीक है। पहला देखो, मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इसी को हम लोग एयर भी बोलते हैं। एयर कहने का मतलब ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है। एंड मेक द बेसिक ऑक्साइड। बेटा कैसा ऑक्साइड बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड। ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा गया या आ चुका है कि मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन और कैसा ऑक्साइड बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। आगे उसकी प्रॉपर्टी मैंने लिख रखी, विच टर्न मतलब चेंज करना, या आप चेंज भी लिख सकते हो, विच टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो शॉर्टकट में फिर से रिपीट कर दूं कि मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और कैसा ऑक्साइड बनाते हैं बेटा? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, विच टर्न द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। नॉन मेटल्स के लिए यही उल्टा है। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड मेक द एसिडिक ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड बनाते हैं बेटा? एसिड वाला ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। उसकी प्रवृत्ति, उसका नेचर एसिडिक नेचर का होता है। और अगर वो एसिड है तो विच टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड वन, और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज करता है। जैसा मेटल का है उसका उल्टा, वो बेसिक बनाता, ये एसिडिक बनाता, वो रेड को ब्लू करता, ये ब्लू को रेड करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन मैंने जैसे बताया वाटर के साथ बताना है। सो मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड के साथ पहले लिखा है मैंने, कोई बात नहीं। मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड, जो भी मेटल्स होगा वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। एंड मेक देयर सॉल्ट, और वो क्या बनाते हैं? अपना सॉल्ट बनाते हैं बेटा। और सॉल्ट किस फॉर्म में बनाते हैं? अगर वो किसी क्लोराइड आयन, क्लोराइड के साथ क्लियर, या तो सॉल्ट जो होगा वो क्लोराइड के फॉर्म में बनेगा, जैसे ठीक है सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, या वो सल्फेट के फॉर्म में बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के एसिड के साथ हमारे मेटल ने रिएक्ट किया है। अगर हमारे मेटल ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है जिसका फॉर्मूला HCl होता है, तो जनरली सॉल्ट क्लोराइड के फॉर्म्स में बनेंगे। और इफ आवर मेटल हैव रिएक्टेड विद द सल्फ्यूरिक एसिड विच फॉर्मूला इज H2SO4, तो जनरली जो भी सॉल्ट होगा वो सल्फेट के फॉर्म में बनेगा, जैसे सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब मैं क्या बोल रहे वाला हूं कि मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड, मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ एंड दे मेक देयर सॉल्ट,
वो अपना सॉल्ट बनाते हैं। ऑल्सो डिस्प्लेस करना मतलब होता है हटाना, डिस्प्लेस करना मतलब उसका स्थान लेना या उसको हटा देना। एंड डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, और ये क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। कहां से? एसिड से। क्यों कर देते हैं? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन की कंपेयर में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और हमने यही तो सीखा रिएक्टिविटी में कि कोई भी मेटल अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है ना। और इसी को तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड, मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड मैक देयर सॉल्ट, वो अपना सॉल्ट बना लेते हैं। एंड ऑल्सो डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर चुके होते हैं, विच कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ अ गैस। और यही हाइड्रोजन हमको गैस के फॉर्म में बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, साउंड स्मोक के रूप में दिखाई देता है, बबल्स के रूप में दिखाई देता है, पॉपअप साउंड करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है बेटा। आगे नॉन मेटल्स जो होता है कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, यही बात लिखी है मैंने। नॉन मेटल्स नेवर रिएक्ट विद द एसिड, नेवर मतलब कभी नहीं। नॉन मेटल्स नेवर रिएक्ट विद द एसिड, नॉन मेटल कभी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, एज दे डोंट हैव कैपेसिटी टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इनके पास वो कैपेसिटी, वो योग्यता होती ही नहीं है कि ये हाइड्रोजन को हटा सकें। या यूं कहें कि नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में कम होती है। नॉन मेटल्स इतना रिएक्टिव नहीं होता है या हाइड्रोजन के कंपेयर में कम रिएक्टिव होता है, और इसीलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है। आगे थर्ड, मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर, मेटल्स वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। एंड मेक देयर हाइड्रोक्साइड, और वो अपना क्या बना लेते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। क्योंकि इस चीजों को और आप हायर क्लास में जाकर के पढ़ेंगे कि H2O जो होता है ना, H2O मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टू पार्ट्स, वो दो आयनों से बने हुए हैं, एक तो H प्लस आयन और एक तो OH माइनस आयन, ठीक है। OH माइनस को ही बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयंस। अब फिर से रिपीट करता हूं, मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर, मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड मेक देयर हाइड्रोक्साइड, और वो अपना हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। एंड हाइड्रोजन गैस कम्स आउट, और यहां पे भी वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जो काम एसिड के साथ के टाइम पे रिएक्ट करने के टाइम पे हुआ था, वही काम यहां पे भी होता है व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर ऑल्सो। तो मेटल्स जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो अपना हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। अब नॉन मेटल्स के बारे में जब ये बात अपन पढ़ेंगे तो वही बात है कि नॉन मेटल्स नेवर रिएक्ट विद द वाटर, नॉन मेटल्स कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव कैपेसिटी टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम देयर वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनके पास ये कैपेसिटी, योग्यता नहीं होती है कि ये हाइड्रोजन को H2O से अलग कर सके और डिस्प्लेस कर सके। या यूं कहें कि नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती है, ये हाइड्रोजन के कंपेयर में कम रिएक्टिव होते हैं, तो उसको हटा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें ही थी बेटा, और ये तीन चीजों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, समझाया है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और ये रिलेटेड है, रिएक्शन से रिलेटेड है। और ये रिएक्शन वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो आप, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शन से हम लोग बहुत घबराते हैं बेटा, है ना, डर लगने लग जाता है, कांपने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रिएक्शंस बहुत ही इजी होते हैं। लुक हियर, कुछ भी नहीं करना होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो अपना बना लेगा। जैसे कि यहां पे देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, बोला गया रिएक्शन को कंप्लीट करो, और लिखा है Cu। Cu मतलब होता है बेटा कॉपर, कॉपर का एटॉमिक सिंबल है Cu, प्लस FeSO4 लिखा है। Fe किसका सिंबल होता है, आयरन का, और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो ये क्या बना हुआ है बेटा, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट के साथ कॉपर का रिएक्शन होगा कि नहीं बताना है। मैंने ये एरो का निशान जो होता है ना, वो ये बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। राइट हैंड साइड में ये अपन शो करते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, नया पदार्थ क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा नो रिएक्शन। क्यों लिखा है नो रिएक्शन, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। नो रिएक्शन इसलिए बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी जो होती है ना, इट इज मोर देन द Cu, ये कॉपर के कंपेयर में ज्यादा होती है।
बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ द आयरन इज मोर देन कॉपर, क्योंकि आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर के कंपेयर में ज्यादा होती है, या यूं कहें कि कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन के कंपेयर में कम होती है, तो ये आयरन को यहां से हटा नहीं पाएगा, और नहीं हटा पाएगा इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज मोर देन द कॉपर, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर के कंपेयर में, एंड कॉपर इज अनेबल, और यहां पे कॉपर हो गया अनेबल, अयोग्य हो गया, टू डिस्प्लेस द आयरन, आयरन को हटाने के, टू डिस्प्लेस द आयरन Fe फ्रॉम इट्स कंपाउंड, आयरन का जो कंपाउंड बना हुआ है आयरन सल्फेट, वहां से आयरन को कॉपर अब नहीं हटा पाएगा, बिकॉज इट्स रिएक्टिविटी इज लेस एज कंपेयर टू द कॉपर, सॉरी एज कंपेयर टू द आयरन, या यू कहें आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरा देखो Zn प्लस H2SO4, Zn सिंबल होता है बेटा जिंक का, और H2SO4 को हम लोग एक एसिड के नाम से जानते हैं। कौन सा एसिड होता है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन ये होगा कि जिंक जो होता है, हाँ ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये अपना कंपाउंड बना लेगा। कैसे बना लेगा? ZnSO4 बना लेगा। देखो बना लिया, ZnSO4 बन जाएगा, जिसको जिंक सल्फेट के नाम से जाना जाएगा। और हमने अभी पढ़ा था जितने भी मेटल्स होते हैं वो कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अपना सॉल्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जिंक सल्फेट जो बना है वो इस मेटल का सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देते हैं, तो प्लस आपको H2 मिल जाएगा, दैट इज द हाइड्रोजन गैस। तो ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे बस बहुत ही आसान था, एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, हो जाएगा आपका। ठीक है, सो टिल हियर आई एम गोइंग टू फिनिश माई लेक्चर। नेक्स्ट टाइम वी विल डू समथिंग मोर।